There are about 40 farmer organizations that constitute thousands of farmers that have taken to the streets across North India. They are marching towards Delhi now. The farmers are demanding the implementation on the Swaminathan Commission's recommendations and the enactment of a law to guarantee minimum support price for the crops. In fact, let's quickly take a look at what the volatile ground situation is right now. Joining me on the telecast right now are Ram Singer is joining me from Singhu border. I have Javed Hussain, and on Tikri border there's Rajat Kumar who is on the Greater Noida border, and Brian Thomas who's reporting from Ghazipur border. Can we also get somebody from Shambhu border where the maximum volatility has been witnessed? Meanwhile, let's quickly get in all my reporters on screen. I'm going to start with Brian. Brian, you're in Ghazipur border. What's the current situation right now? Well, Megha, the situation, if we show you the situation at the very Ghazipur border, you can actually see and understand that there's, barbed wires have been put here. Barricading of all sorts are being done at two levels. These are the cemented barricades that have been put out by the Delhi police, as well as there are the normal barricades. And above that also, you can see also the men are working to ensure that, there are barbed wires also at places to ensure that the security is tightened up so that to stop the farmers entering the very national capital. And a result of that also, the commuters who are traveling from one place to another are facing a lot of problems, the traffic congestion also. And here also, if we show you that there are many, CRPF, BSF and police personnel who are deployed, who are on a constant vigil to ensure that there is no movement of the farmers as of now. And even a special CP is also coming here. He has come here 2 to 3 times to get a stock of the situation. And now also there are people who are working to ensure that these things, these barbed wires are on place. And even today also the Agriculture Minister, Arjun Munda, also expressed readiness to hold discussions considering all viewpoints and appeal for a conductive environment for dialogue. So yes, a meeting has also been done. But yes, till now, in Ghazipur, there are no movements from the farmers, but yes, the securities are fully on prep. The securities are fully heightened. On the other side of the road also, there are again 3 to 4 levels of barricading done to ensure a proper vigil by the Delhi police officials. Yes, Megha. Brian, if I could just quickly ask you to stay on the screen. Let's quickly get all the reporters right now on our screens. Like I said, from Singhu border, Tikri border, Greater Noida, Ghazipur and Shambhu border as well. Now I'm going to quickly go to Javed Hussain. He's at Tikri border. Javed, 2 days long protests. Have the police been able to, at this point of time, take control of the situation at least? Rajat Kumar at the Greater Noida border. Rajat, what's the traffic situation there? Is it better than other borders that have been at this point of time under siege? देखिए बिल्कुल कल के मुकाबले की जाए बात तो आज नोएडा ग्रेटर नोएडा राहत है। जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया तो उसके आज पार्ट 2 हो चुका है। जो किसान है पंजाब हरियाणा से तो तमाम जो बॉर्डर पर पहुंचने की कवायद तो शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको अगर तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की दिखाएं तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक को लेकर, जहां पर कल नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, जहां पर ट्रैफिक था वो जमता गया था, जो यातायात था काफी प्रभावित था। आज कहीं ना कहीं राहत है वो देखा गया, क्योंकि नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, वो क्षेत्र जो कि दिल्ली को जोड़ता है, तो यहाँ पर किसानों की उम्मीद थी वो जाने की, वो नहीं बताई गई। जैसे मैं वही अगर अब कल की बात की जाए चिल्ला बॉर्डर की, जहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, इसके साथ साथ और भी तमाम ऐसे बॉर्डर्स है जहां पर पुलिसिंग की व्यवस्था आज काफी तरह से बेहतर है। क्योंकि 2020 की बात की जाए, जहां पर किसान लगभग 1 साल तक धरने पर बैठे रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उसके बाद जो माहौल था दिल्ली का बहुत ही भयानक बना था। ट्रैक्टर से वो दिल्ली के अंदर जा रहे थे, तो ऐसे में इस बार स्थिति ना बने, इसको लेकर पुलिस है वो मुस्तैद है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, हर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स है। इसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे हम यमुना प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जहां पर भारी पुलिस फोर्स की
तैनाती की गई है। किसानों की माने तो जो नोएडा के किसान है, ग्रेटर नोएडा किसान है, वो भी प्रशासन से नाराज है। लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है, चाहे पंजाब की किसानों की बात की जाए, हरियाणा किसानों की बात की जाए, जो कि तमाम बॉर्डरों पे पहुंच रहे हैं, इन किसानों से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन वही राकेश टिकैत का कहना है कि अगर किसानों के साथ कुछ गलत होता है तो ये किसान भी चुप नहीं बैठेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो कहीं ना कहीं प्रशासन में तैयारियां हैं, जो पिछली वर्ष जो हुआ था वो इस बार ना हो सके, उसको लेकर हर तरफ निगाह है। तो प्रशासन जमाए हुए चक्के चक्के पर निगरानी है जो रखी जा रही, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, और उसके साथ साथ तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर जाम लगता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करने के लिए रूट का डायवर्ट किया गया है। कल का बताऊं तो कल जो सेक्टर चिल्ला की बात की जाए तो वहां पर भीषण जाम लगा हुआ था, लोग हैं जो घंटों फंसे थे। तो ऐसी किल्लत आज ना झेलनी पड़े, उसके लेकर जो नोएडा पुलिस ने यातायात प्लान तैयार किया गया है, उसके तहत तमाम जो रूट है जो कि दिल्ली को जोड़ते हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। अब जिस तरीके से किसान आंदोलन है, लोग परेशान है, आम जनता परेशान है। कल की बात की जाए जो हरियाणा के बॉर्डर पर हिंसा भी हुई थी, उस हिंसा को देखते हुए नोएडा पुलिस काफी एक्टिव है। आज भी जगह जगह पर निगाह है वो नोएडा पुलिस बनाई हुई है। Right. Also, quickly also getting in Ram Singhmar. Ram Singhmar is at the Singhu border. Singhu border is Singhu borders Haryana. So all the traffic coming in from Haryana to Delhi and traffic wanting to travel from Delhi to Haryana at this point in time is clogged. But let's understand how bad the situation is. And Ram Singhmar, यहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन हमें आप कुछ बताइए। क्या इस समय हम कंपैरिजन किया करें जहाँ टिकरी या ग्रेटर नोएडा का बॉर्डर, गाजीपुर का और शंभू बॉर्डर के कंपैरिजन में सिचुएशन सिंघू बॉर्डर पे क्या है? मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लाइफ लाइन कहा जाता है NH 44 से। और निश्चित तौर पर अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो सूचना बोर्ड है उनको उतारने का कार्य यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अगर किसान यहाँ तक पहुंचते हैं और जब आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे तो वो इससे ना टकराएं, इसको लेकर यहाँ पर ये बोर्ड उतारने का कार्य चल रहा है। एक तरफ के ये बोर्ड उतार दिया गया है तो दूसरा बोर्ड मैं दिखा रहा हूं उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। और ये आप देख सकते हैं कि NH 44 का वही बोर्ड है, वही सूचना बोर्ड है जो इंटीमेट करता है कि दिल्ली में आपका स्वागत है। और दिल्ली में जब लोग पहुंचते हैं तो यहीं से होकर गुजरते थे, लेकिन अब NH 44 पूरी तरह से सील हो चुका है। बैरिकेटिंग जो है वो हाईवे पर देखी जा सकती है। हालांकि ये पहली बैरिकेटिंग है जो इंटीमेट करती है, जो दूर दराज से वाहन चालक आते हैं तो उनको ये सूचना के तौर पर देखा जाए कि यहाँ आगे जाने का रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ आपको हम दिखा देते हैं कि सामने बिल्कुल अलग अलग लेयर में आज सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फ्लाईओवर की बात करें तो 14 अलग अलग सुरक्षा लेयर है, और इसी प्रकार पैरेलल बात करें तो सर्विस रोड है, वहां भी इसी प्रकार से मजबूत यहाँ पर इंतजाम है। और जिस प्रकार से अब औद्योगिक क्षेत्र भी काफी प्रभावित होना शुरू हो गया है, यानी कि सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। हालात ये भी है कि यहाँ के जो एसोसिएशन के प्रधान है वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि पिछले 3 दिन में 3 डिजिट करोड़ का नुकसान इंडस्ट्री को हो चुका है। जी Okay, let's also get an understanding on the ground of what is happening at the Greater Noida border. Rajat Kumar on the telecast with me. Rajat, how normalized or abnormal the situation is? जी तो बिल्कुल जिस तरीके से प्रदर्शन था, हालांकि नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो जो कल के मुकाबले आज माहौल में काफी सुधार है। हालांकि जगह जगह पर जो बॉर्डर्स है उनको सील किया गया है, उसके साथ साथ चेकिंग है वो आज भी की जा रही है। तमाम बॉर्डर्स की बात की, चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए, DMD की बात की जाए तो वहां पर पुलिस फोर्स आज भी मुस्तैद है। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए जहाँ पर किसानों को गढ़ कहा जाता है, जहाँ पर किसान संगठन रहते हैं, तमाम किसान संगठनों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि कल भी वार्तालाप हुई थी किसानों के साथ, नोएडा जिला आबकारी वार्तालाप हुई जिसमें
ने प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल थे। यहाँ के जो किसान है उनका साथ साथ ये जमीनी हकीकत की बात की जाए तो उनका मुआवजा है, उसके साथ साथ जो प्लॉटिंग है उसकी बात को लेकर उन्होंने 18 फरवरी का आश्वासन है वो दिया है। लेकिन वही जो पंजाब और हरियाणा से किसान आ रहे हैं, हजारों की संख्या में सेक्टर से पहुंच रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए प्रशासन है वो मुस्तैद है। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से पंजाब हरियाणा के किसान है जो बॉर्डर पहुंच रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के किसान है जिसने पिछली बार 2020 की बात की जाए सचमुच उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक किसान थे इस बार प्रदर्शन में, तो इस बार वो किसान है वो नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये किसान है इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इसको लिहाजा से देखा जाए तो माहौल है वो उत्तर प्रदेश का कंट्रोल में है। तमाम बॉर्डर को देखो। Okay, all right. Let's try to also understand from Javed Hussain. Javed Hussain has a Tikri border. Tikri is bordering Haryana. So, Javed, what's the ground situation right now? How is the traffic situation? Are people able to commute on the road? देखिए, इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पे हैं और इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार इस रास्ते को पूरी तरीके से सील करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको पहले नीचे दिखाऊंगा कि देखिए इस तरीके के पूरे जो पत्थर है जो उसको यहाँ पर पूरी तरह से लगाया गया जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे इस तरफ दाएं तरफ राइट साइड जो है यहाँ से हरियाणा आगे शुरू होता है और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेटिंग की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर आगे डिप्यूट किया गया है, इसके आगे लास्ट बैरिकेटिंग है। वहीं दूसरी तरफ चौरासी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो कटीले तार है, जो ये स्टैंड है, ये जो सीमेंटेड स्टैंड यहाँ पे रखा गया है, इसको 2 लेयर रखा गया है। इसके आगे एक तीसरा लेयर है जिसको पूरी तरीके से सीमेंटेड किया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर भी इसको भरने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त से काम शुरू हुआ है, जो मेरे वीडियो अपडेट दिखा रहे हैं यहाँ से काम शुरू हो गया है और अब जो ये रास्ता है इस रास्ते को भी बैरिकेड कर दिया गया है। जो यहाँ पर रास्ता है इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया। ये उस वक्त खुला हुआ था लेकिन अब इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इस पूरे रास्ते को सील किया जा रहा है। जो रास्ता है लोगों के लिए वो पीछे की तरफ से, जो मेरे पीछे ये कुछ मार्केट्स आप देख रही है, शॉप खुली हुई है, इसके पीछे से जो रास्ता है वहां से लोगों को जाने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन पूरी तरीके से साइकिल या स्कूटर अब इधर से नहीं जा सकता है और सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरीके से जो सीनियर ऑफिसर्स है इस वक्त स्पेशल सीपी जोन 2 जो है लॉ एंड ऑर्डर, वो यहाँ पर उन्होंने खुद कैंप किए हुए। मेरे पीछे जो आप टेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उस टेंट में स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी सबने अपने इसको कैंप कर रखा है यहाँ पर और सारे सिचुएशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं पूरी सिक्योरिटी को लेकर। और यहाँ पर साउंड वेव यहाँ पर मशीन लगाई जा रही है जिससे कि जब किसान जब अगर यहाँ पर तक पहुंचते हैं तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए साउंड वेव का जो मशीन है वो सिस्टम यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पूरी तरीके से बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ जो मेरे वीडियो अपडेट्स दिखा रहे हैं कि बैरिकेटिंग के कई लेयर्स रखे हुए हैं जो कटीले तार द्वारा यहाँ पर रखा गया है और ठीक इसी तरीके से पूरा एक लंबा एग्जीक्यूट किया जा रहा है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ पूरी तरीके से यहाँ पर डिप्यूट है और यहाँ पर महिला जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो जवान है वो लोग भी यहाँ पर महिला इनको भी तैनात किया गया। पूरी तरीके से 2 साइड दृश्य दिखा रहे हैं, ये मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, मल्टी लेयर सिक्योरिटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने शंभू बॉर्डर पे देखा कि ये जो ट्रैक्टर्स को लेकर, ट्रेलर्स को लेकर फार्मर्स भारी तादाद में वहां आ रहे थे, ये सब बैरिकेड्स को तोड़ दिया था उन्होंने, जो कॉन्क्रीट स्लैब्स हैं उनको भी तोड़ दिया था। पर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है कि अभी तक जो किसान है इस बॉर्डर पर पहुंचे नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल जो किसान है वो यहाँ से जिंद से आगे, क्योंकि ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, यहाँ से दिल्ली के आगे बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है और जो किसान है वो यहाँ से तकरीबन 2 से 250 किलोमीटर आगे है। 250 किलोमीटर उनका अभी तक यहाँ से एरिया है और जो लोकेटेड है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग की गई है, ठीक उसी तरीके से आगे झज्जर के पास भी बताया गया कि ठीक इसी तरीके से हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग की गई है और हरियाणा पुलिस की हरियाणा गवर्नमेंट लगातार हरियाणा पुलिस और वहां के सीनियर्स डीजीपी से लगातार कोऑर्डिनेट में है कि किसी तरीके से जो किसान है उनको वहीं रोकने के लिए, क्योंकि जो अभी हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताएं, हमारी कुछ देर पहले जो सीनियर ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस के यहां पर आए थे, कुछ अभी भी यहां पर एग्जीक्यूट वो यहां पर कैंप कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो लास्ट ईयर जिस तरीके से 2021 में किसानों को जब 26 जनवरी के वक्त उनको एक रूट की बात आई थी और जिस तरीके से उनको रूट
दिया गया और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिस तरीके से धोखा हुआ, ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होना है। किसानों को लगातार जो गवर्नमेंट है वो बात करने का उनका इंतजार कर रही है और सरकार की तरफ से जो जानकारी है कि बिल्कुल खुला ऑफर है कि आप आइए बात कीजिए। सभी हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें या भारत सरकार की बात करें, उनके तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार कोऑर्डिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से परसों ये पूरी जो मीटिंग थी फार्मर्स के लीडर्स की जो बेबुनियाद रही, बेनतीजा निकली, उसके बाद उनका ये कॉल था कि चलो दिल्ली चलो। तो इसको लेकर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रॉपर सिक्योरिटी है। और देखिए यहाँ पे खुद मैं आपको विजुअली दिखाऊंगा कि ज्वाइंट सीपी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और वो खुद इसका मुआयना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश चल रही है। इंडिया न्यूज एक्स पर देखिए इस वक्त ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी रैंक के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर इस पूरे सिक्योरिटी को लेकर एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसको आगे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि सीमेंट का पूरा एक लेयर तैयार किया जा रहा है ताकि कंक्रीट के तरीके से पूरे जो ये पत्थर जहां पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं इसी को पूरी तरीके से फुलफिल किया जा रहा है जिससे कि इसको पूरी तरीके से हटाया ना जा सके। ये एक पूरा रास्ता है। और आपको मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए ऊपर multi reporter live at this point of time. All my reporters on NewsX are reporting live from Singhu border, Tikri border, Greater Noida border, Ghazipur border, and the most volatile, that is Shambu border, that is right adjacent to Punjab. In fact, we are getting to know that the farmers now are using water and fans which they have installed behind their tractor trailers to neutralize the tear gas that has been thrown by the police. Coming back to Brian. Brian, the situation extremely tense in Shambu border particularly. You know, tear gas has been lobbed by the police on these protesting farmers because the agitation at this point of time is nearing violence. Well, definitely, Megha, situation at the very border is very tense because tear gas, water cannons are being used by the farmers. But, you know, where we are standing at the Ghazipur, the situation is still better in terms of because the farmers have not yet reached this very place. But yes, if you talk about Ambala also, yesterday also there was a lot of tear gas hurling from one place to another. And as a result of that, you know, people were also facing a lot of problems. And now if we talk about you know, Ghazipur also where we are here, the problems in terms of the traffic is also, you know, there the intense traffic is also creating because, you know, this very flyover is said to be move in a very smooth flow, but as a result of you know, these deployments of the barricades you know, of these barbed wires of the you know, of the trucks by the you know, the half of the flyover has been covered by these arrangements. As a result of that also the traffic movement has become very slow. The traffic movement has you know, has been hit adversely. As a result of that also a flyover which actually had a very smooth flow of traffic is is facing a lot of problems. You know, the cars are you know, moving slowly, and as a result of that also traffic jams are also occurring at this very place also. Yes, Megha. Okay, all right. On that note, I thank all of you for joining me on the telecast. We'll keep a close eye on all these big developments pouring in. Delhi under siege. In fact, there are a number of bordering states of Haryana, Uttar Pradesh and Punjab which have also been under siege, especially because of the trucks that cannot move from one state to another. Borders at this point of time sealed. Unfortunate for the commuters, unfortunate for the local people in all these states. It is the farmers who have besieged the area. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.